ओके, वन बाय वन आंसर देंगे. Get the algebraic expression in the following cases using variables, constant and arithmetic operations. What are arithmetic operations? Addition, subtraction, multiplication, division. Yes. So आपको algebraic expression की फॉर्म में लिखना है. आपको स्टेटमेंट फॉर्म गिवन है, आपको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है. Okay, what will be the answer for subtraction of z from y? Subtract Y minus. yes, subtract Y minus. z from y. Y में से, so y minus z. Next, Virat, 1/2 of the sum of number x and y. 1/2 of sum of X plus y upon 2. yes, या मैं लिख सकती हूँ 1/2 ब्रैकेट में x plus y means sum of x and y और उसका half. The number z multiplied by itself. Z multiplies by Z multiplied Z is equals to Z of z raised to power 2, z square. Z multiply z, that will be z square. अगर सेम बेस होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. ठीक है, z रेज टू पावर 2. नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का. उसमें ये फॉर्मूला होगा x रेज टू पावर a. यस, एक्सपोनेंट एंड पावर्स. तो अगर बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में टर्म्स है तो पावर्स ऐड हो जाती है. तो हमने किया z मल्टीप्लाई z, पावर्स 1, दोनों मल्टीप्लाई में है, बेस इज सेम. दिस इज कॉल्ड बेस. जो नीचे लिखा है, जो ऊपर लिखा है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट और पावर. Next, 1/4 of the product of number p and q. PQ upon 4. Yes, Q upon 4. upon 4. Number x and y both squared and added. X square plus y. X square plus y square. Yes, number x और y दोनों का पहले स्क्वायर किया, then add. Next one, number 5 added to. 5 को ऐड किया गया किसमें? 3 times the product of number m and n. 3 times product of mn plus 5. ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है विराट. 3mn एक साथ लिख दिया ना. 3 times प्रोडक्ट में तो एक साथ ही लिख देते हैं टर्म. 3 times प्रोडक्ट ऑफ नंबर mn, उसमें 5 ऐड किया गया. नेक्स्ट 7th पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y and z subtracted from 10. Ma'am 10 minus yz. Ma'am 10 minus yz. yz. Right. Next part, 8th part, sum of number a and b subtracted from their product. AB minus A plus B. Sum of number AB minus a and b subtracted from their product. Product में से. So ab minus ब्रैकेट में a plus b लिखोगे. अगर ब्रैकेट नहीं लगाया माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, चले नेक्स्ट पे. Yes, ma'am. Okay. Identify the terms and their factors in the following expression. Show the terms and factors by tree diagram. Okay. So x minus 3 is the first term. Okay, let me write the terms first. Expressions लिखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 के लिए. Okay, first expression is x minus 3. Second expression is 1 plus x plus x square. And what is the third? Third one is y minus y cube. चलो पहले इसकी टर्म्स और फैक्टर्स लिखनी है. ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं टर्म्स. Ma'am x and minus 3. And factor. What are terms? And terms are x and minus 3. Yes, x and minus 3. These are the terms. मैंने बताया था कि algebraic expression कब बनता है, जब हम terms को, separate terms को
ऐड करते हैं, इसलिए माइनस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी टर्म के आगे माइनस साइन है और हम टर्म को सेपरेटली लिख रहे हैं तो माइनस लगाएंगे। नाउ वी विल हैव टू राइट द फैक्टर्स। सो फैक्टर्स आर x के 1 into x और -1 into 3. So these are the factors. जरूरी है मैम फैक्टर्स माइनस भी लिख यस x and -3 फर्दर और फैक्टर्स नहीं है तो यही भी लिख सकते हैं। हाँ जी विराज, आप क्या पूछ रहे हो बच्चा? मैंने ये पूछा था कि मैम फैक्टर्स वाले में लिखना जरूरी है या नहीं। Okay, so next terms are 1x square. अब 1 का तो 1 into 1 है, x का 1 into x तो नहीं लिखेंगे। So factors of x square is x multiply x. So okay, next बार बताएंगे C part की what are the terms? टर्म्स बताइए इसकी। y minus y and minus y cube. Okay. Now what are the factors? Factors बताइए। y factor of y and of minus y, it's minus y multiply y multiply y. माइनस y भी हो सकता है। माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म मेरे पास माइनस की आएगी। यस और नो? यस मैम। तो आप उस तरह से भी लिख सकते हो, -1 into भी लिख सकते हो, है ना? यस मैम। -1 into 3 बार y वो भी लिख सकते हो, तो चॉइस इज योर्स। तो मैं इसको लिख देती हूँ एक बार -1 y y and y। क्लियर? यस मैम। जैसे इसमें x -3 थी तो जब 1 into फैक्टर आए तो लिखने की जरूरत हमें नहीं होती, तो आप इसको लिख भी सकते हो -1 into 3 और नहीं भी। ठीक है? यस मैम। चलिए नेक्स्ट पे। यस मैम। जब आपको टर्म्स लिखनी है, आप टर्म्स लिखने के लिए चाहे जैसे फैक्टर ट्री से कहे तो इस तरह से आप टर्म्स लिख दो और फिर दूसरे मेथड से यू कैन राइट द टर्म्स लाइक दिस और उसके बाद फैक्टर्स को इस तरह से शो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं कर सकते, वो आपकी मर्जी है। तो मैं इसको टर्म्स को लिख देती हूँ 1 2 and 3 टर्म्स एंड फैक्टर्स लाइक दिस। टर्म्स के लिए हम ऐसे बना देते हैं, first term is this, second term is this, and these are factors. Let us move to the D part. Yes ma'am. So what is the D part? चलो आप स्टेटमेंट नोट करो फिर मुझे बताना। 5xy square plus 7x square y. 5xy square plus 7x square y. Plus 7x square y. And what is the E part? What I did. Minus AB plus 2B square minus AB plus 2B square minus 3A square. चलिए फर्स्ट राइट द टर्म्स। यस विराज, टर्म्स बताइए। बी पार्ट में भी टर्म्स बताइए। बी पार्ट में मैम बी और डी? डी। मैम इन डी पार्ट द टर्म्स आर 5xy square and 7x square y. यस। व्हाट आर द फैक्टर्स विराट? 5xy स्क्वायर के फैक्टर बताएंगे। मैम 5xy मल्टीप्लाई 5xy। हाँ 5x y 2 बार है तो y इंटू y। ठीक है। 7x स्क्वायर के विराज 7 मैम there are 7x and y. यस। विराट ई पार्ट में आप टर्म्स बताएंगे। What are the terms? Minus AB 2B square minus 3A square. Minus AB 2B square minus 3A square. विराज फर्स्ट टर्म के फैक्टर बताएंगे। फर्स्ट टर्म का फैक्टर्स आर मैम -1 A and B. सेकंड क्या बताइए विराज? मैम फॉर सेकंड इज 2B and B. विराट थर्ड टर्म के बताएंगे। -3A and A. Yes, so these are factors.
क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन सभी को? यस मैम। सेकंड का ही फर्स्ट पार्ट है ये, उसके बाद एक और है आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो इसमें हमें लिखनी है सेकंड पार्ट में, सेकंड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर अगला बना देते हैं उसकी टर्म्स का और उसके बाद फैक्टर्स का। ठीक है, उसमें हमें फैक्टर ट्री मेथड से कहा था तो हमें उसको वैसे ही शो करना है। इसमें कोई मेथड से नहीं कहा तो हम सारे टर्म्स के लिखने हैं, तो हम टेबल बना लेंगे तो इजीली लिख पाएंगे। जल्दी से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नीचे टर्म्स नोट कीजिए सारे पार्ट्स की। हाँ जी, टर्म्स नोट कीजिए इस पार्ट तक। अगर आपके पास बुक ओपन है तो उसमें देख लो, नहीं तो यहाँ देख लो। ओके, पहले डी पार्ट तक नोट करो, पहले हम उसी की करेंगे फिर आगे चलते हैं। ओके, फर्स्ट क्या है? -4x + 5। अब देखो जब इसकी टर्म्स लिखोगे ना टेबल की फॉर्म में तो -4x और 5 ऐसे नीचे अगली लाइन में लिखना। कारण क्या है इसका? अगर आप कॉमा डाल के लिखोगे, जब आप फैक्टर लिखोगे कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो -4 और x के फैक्टर आ गए, -4x और 5 का फैक्टर तो 5 ही है। What is the second part, Virat? Statement -4x + 5y। okay. What are the terms, Viraj? यस मैम। टर्म्स बताइए। मैम द टर्म्स आर मैम -4x and 5y। एक मिनट। ओके, -4x 5y। ओके, इसके फैक्टर्स बताएंगे विराज। मैम द फैक्टर्स आर -4 and x and 5 and y। यस, विराट नेक्स्ट टर्म बताएंगे। 5y + 3y²। टर्म्स 5y and 3y²। ठीक है, फैक्टर्स बताइए विराट फर्स्ट के। 5 y। 5 and y are factors। 3, y, 3y and y are factors। गुड, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा था xy + 2x² y²। 2x² y²। ओके, नेक्स्ट वाले पार्ट भी नोट कर लो। ई पार्ट pq + q। ओके, हमने फोर्थ लिखा है, ABCD लिख देते हैं। नोट किया नेक्स्ट स्टेटमेंट? नहीं करी अभी? यस मैम। नोट करो जल्दी से। ई पार्ट इज pq + q। What is the F part? 1.2 AB, 1.2 AB -2.4 B 3.6 A। यहां तक नोट करो, F तक। 1.2 AB -2.4 B plus 3.6 A. This was the statement. Let me check once again. Yes. चलिए विराज टर्म्स बताइए। मैम ऑफ डी पार्ट। यस, डी पार्ट। मैम xy and 2x² and y²। ओके, फैक्टर्स बताइए। मैम x and y। Yes, what are the factors of the next term? मैम 2 x, y and y। Yes, good. विराट नेक्स्ट की टर्म्स बताइए। pq + p, pq and q। pq and q are the two terms. What are the factors? p and q and q। Yes. Next, Viraj. मैम यस। मैम द टर्म्स आर 1.2 AB, 2.4 B and 3.6 A। 2.4 के आगे माइनस है, उसको छोड़ना नहीं है, गलती नहीं करनी। हाँ जी, बताइए फैक्टर्स। मैम 1.2 A and B, मैम 2.4 and B, मैम 3.6 and A। 3.6 and yes ma'am, these are factors. Okay. A। G and H, two more parts are there.
ओके, स्टेटमेंट नोट करेंगे, जल्दी से दिखा रही हूँ मैं स्लाइड। 3/4x प्लस 1/4 0.1 p square plus 0.2 q square. 3/4x plus 1/4 0.1 p square plus 0.2 q square, यही था। ओके, किसकी टर्न है? विराट। हाँ जी, बताइए विराट, टर्म्स ऑफ जी पार्ट। 3x upon 4, 3/4x 3/4x and 1/4. yes. What are the factors? 3x 3/4 and x मल्टीप्लाई में है ना दोनों टर्म्स, तो कांस्टेंट टर्म इनटू वेरिएबल, और 1/4 का फैक्टर 1/4 ही होगा। नेक्स्ट विराज। Yes, ma'am. Ma'am, the terms are 0.1 p square and Yes. 0.2 q square. Yes. And what are the factors? Ma'am, the factors are 0.1 comma p and p. Ma'am, 0.2 comma q and q. Yes, these are the factors. Good. चलिए, let us move to the third question now. Identify the numerical coefficients of the terms other than constant. Constant के अलावा इस एक्सप्रेशन में जो भी टर्म्स है उनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखने हैं, ठीक है। सो पहले हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, फिर उसके बाद टर्म्स कौन कौन सी हैं, फिर उनका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। टेबल की फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं कि सारे पार्ट्स के लिखने हैं, तो हम इसी तरह से लिख देंगे। फर्स्ट इज 5 - 3t स्क्वायर। विराट आपकी टर्न थी, व्हाट आर द टर्म्स विराट? 5 and 3t square. 5 and minus 3t स्क्वायर। लेकिन मुझे क्या है, अदर देन कांस्टेंट। 5 - 3t स्क्वायर, जो कांस्टेंट के 5 तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कुछ नहीं होगा। जो कांस्टेंट के अलावा टर्म है उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है विराट? -3 ओनली -3। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मैंने बताया था, अगर मुझे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहा है तो वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी वो लिखेंगे, ठीक है। जैसे चलो मैं एक बताती हूँ, 1 + t स्क्वायर प्लस t क्यूब। इसमें मैं विराज एक समझा रही हूँ बेटे, 1 t स्क्वायर एंड t क्यूब, ये 4 टर्म्स आई इसमें। 1 तो कांस्टेंट ही है, राइट, उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा। अगर मैं 5 का लिखूं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 5 ही होगा। लेकिन मुझे कहा है जो कांस्टेंट के अलावा टर्म है, अब कांस्टेंट के अलावा t स्क्वायर t क्यूब तीनों वेरिएबल है, t के आगे कुछ भी नहीं लिखा। अगर किसी के आगे कुछ भी नहीं लिखा उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा? 1, क्योंकि 1 into that number will be equal to same number, so t का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1, t स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1, t क्यूब का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1। तो मुझे यहाँ पे टर्म्स में आप कांस्टेंट टर्म अगर किसी में है तो वो मत लिखो, क्योंकि हमें अदर देन कांस्टेंट टर्म कहा है, ठीक है, क्लियर? चलिए सी पार्ट करते हैं इसका, थर्ड का My turn. सी पार्ट। स्टेटमेंट इज X plus 2xy plus 3y. x plus 2xy Plus 3y. okay, so what are the terms Viraj? X, Ma'am, the Yes. terms are x, 2xy and 3y. हाँ जी, अब इनके कोएफिशिएंट बता दो, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। Ma'am, x का numerical coefficient is 1. Ma'am, 2xy is 2 and 3y is 3. ओके, x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1, 2xy का 2, 3y का 3। सो डी पार्ट विराट। In terms 100m and 1000m. ओके Ma'am, and numerical coefficient is 100 and 1000. ओके, टर्म्स आर 100m, 1000n, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स आर 100 and 1000। विराज नेक्स्ट वन। Yes, ma'am.
And the terms are minus p square and q square and 7pq. And the Yes. numerical coefficient is -1 and 7. Yes. P and Q both are variables. आगे कुछ भी नहीं है, means -1. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट नोट करेंगे ई पार्ट से आगे. ओके, अब इसमें 1-2 पार्ट था, हमने 1-2 से लिखा था, इधर ई सी डी 3, 4, 5 6 पार्ट से स्टेटमेंट नोट करना. अभी मैं दिखा रही हूँ. दिस इज थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट. चलिए 6, 7, 8, 9 की स्टेटमेंट नोट करेंगे. Note it down. Ma'am, Okay. Sixth part से ma'am, 1.2a plus 0.8b. विराज आपकी टर्न है, बताएंगे. Yes, ma'am. The terms are 1.2a and 0.8b, and the numerical coefficient is ma'am 1.2 and 0.8. Yes, good. Virat next. Virat. टर्म एक ही है मैम 3.14 आर स्क्वायर. Yes. मैम और वो है 3.14. Yes. तो जिसमें एक ही टर्म होती है उसे कौन सी पॉलिनोमियल बोलते हैं विराट? मोनोमियल. यस, जिसमें वन टर्म इज मोनोमियल. जो सिक्स्थ की क्वेश्चन है विराट, उसे क्या बोलते हैं? Ma'am, we say that ma'am binomial. Binomial. Two terms are there, so binomial. Good. चलिए नेक्स्ट वन. 2l plus b. विराज, इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे. देयर आर टू टर्म्स. इसको मोनोमियल नहीं समझना है. 2l and b. हाँ जी, 2l and 2b. ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 दोनों मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो आप यहीं पे ब्रैकेट ओपन करो. 2l plus 2b. दीज आर टू टर्म्स. हाँ जी विराज, कुछ कह रहे हो बच्चा? Ma'am, yes. Ma'am, the terms are 2l and 2b, and the numerical coefficient is 2 and 2. Yes. Virat, next one. What are the terms? 0.1 y, 0.00 y square. 0.01 y square. What is the numerical coefficient? 0.1, 0.01. Yes. So clear numerical coefficients? Yes, ma'am. Let us move to the next question. Yes. Identify term which contain x. हमें वो टर्म ढूंढनी है जिसमें x हो and give the coefficient of x. चलिए इसके भी पार्ट्स नोट करो जल्दी से. इसी तरह टेबल बनाएंगे. एक्सप्रेशन टर्म विद x, कोफिशिएंट ऑफ x. टेबल बनेगा इस तरह से. मैं पहले लिख देती हूँ हेडिंग टेबल का. एक्सप्रेशन, हमें उसके बाद का है टर्म विद x. जिस टर्म में x है वो टर्म फाइंड करो और फिर उसका कोफिशिएंट लिखो x का, x वाली टर्म का. एक्सप्रेशन टर्म विद x, कोफिशिएंट ऑफ x. अब स्टेटमेंट नोट करेंगे आप इसके नीचे टेबल में. y स्क्वायर x प्लस y सेकेंड इज 13y स्क्वायर माइनस 8yx. थर्ड पार्ट इज x प्लस y प्लस 2. Fourth part is 5 plus z plus zx. Fifth part is 1 plus x plus xy. One plus x plus xy. Sixth part is 12xy square plus 25. 12xy square plus 25, and the seventh part is 7x plus xy square. किसकी टर्न है? विराट की या विराज की? मैम माइन. हाँ जी विराज. इसमें पहले हमें टर्म सिर्फ वो लिखनी है जिसके साथ x है. इस एक्सप्रेशन की सारी टर्म्स नहीं लिखनी. टर्म विद x. हाँ जी विराज बताइए. मैम y स्क्वायर x
यस। मैम द टर्म अब हम मुझे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मुझे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं पूछा यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट पूछा है, तो एक्स के साथ जो भी टर्म होगी दैट विल बी द कोफिशिएंट. So y square. the coefficient will be y square. विराट सेकंड पार्ट में बताएंगे. विराट टर्म विद x कौन सी है? -8y(x). Yes. So and what is the coefficient of x, विराट? -8. -8y. x के साथ मुझे अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहा होता तो -8, ओनली कोफिशिएंट लिखा है तो x के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई है वो पूरी होगी कोफिशिएंट. नेक्स्ट विराज. Yes, ma'am. Ma'am, the term is x and the coefficient is y. Yes. I mean, ma'am, y. Yes. Next, Virat. Fourth part. zx. Yes. Coefficient. z. Yes. Viraj. Next. बताएंगे. Ma'am, ma'am, terms are x, y, and the coefficient is y. Okay, but x alone is also the term with x now. X is also a term with x. So x का coefficient 1, x y का coefficient y. चाहे y पीछे लिखा है, चाहे मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं या 3 को 2 से, आंसर विल रिमेन सेम. तो मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, x y हो या y x एक ही बात है. तो x के साथ कोफिशिएंट होगा इसका y, ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट विराट. xy square. 12xy square, विराट. Yes, ma'am. 12xy square. Ma'am, coefficient is ma'am 12y square. Yes, very good. 12y square will be the coefficient. Next, Viraj. Ma'am, the terms are 7x and xy. Okay, here it is not, x is not there, I think. Let me check once again. 7x or 7? 7x, okay. 7x is there. Yes, ma'am. Ma'am, the terms are 7x and xy square and the coefficients are 7 and y square. Yes, 7 and y square. Good. Clear ये वाला भी? Yes. Ma'am, हाँ जी. मैम आज हम सिर्फ मैम एक्सरसाइज 12.1 ही करेंगे. हाँ जी, हाँ जी. Identify term which contains y square. Give the coefficient of y square. 3 parts are there, तो यहीं पे कर लेते हैं. Expression, term with y square, and coefficient of y square. किसकी टर्न है? विराट से एंड हुआ था. विराट से. विराट से. ओके विराट आप बताइए फिर टर्म विद y स्क्वायर कौन सी है? मैम xy square. Minus, Virat. Minus is very important while writing the terms. Okay, what is the coefficient, Virat? -x. Minus x, right. Minus x will be the coefficient. Good. Virat, second part. Yes, ma'am. Ma'am, the terms are ma'am 5y square and the coefficient is 5. Yes. Term with y square is 5y square. Coefficient is 5. Virat, 12x square y minus 15x y square plus 7y square. Terms with y square कौन सी है विराट? Just 15xy square. माइनस. विराट आप बार बार भूल रहे हो, माइनस नहीं भूलना है बच्चा. माइनस भूल गए तो खत्म, क्वेश्चन वहीं पे रॉन्ग. दिस इज द ओनली टर्म विद y square. No, ma'am, 7y square is also there. Okay, 7y square is also there. First is 15x. माइनस 15x. विराट माइनस नहीं भूलना बच्चा, माइनस भूल गए तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. प्लीज कीप इट इन माइंड. ठीक है. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4. Let us move to the question number 5. That is so easy. हमें मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बतानी है. विराट विराज आपकी टर्न है. फर्स्ट बताइए विराज क्या है? Ma'am, can I tell all of them? No, not all of them. One by one. Okay, ma'am. Ma'am, the first term is binomial. Yes, there are two terms, negative in the middle. One term is this, second is this. So this is binomial. Virat, monomial. Ekam,
Yes, ma'am. थर्ड पार्ट बताइए क्या है? Yes, ma'am. मैम कौन सा? थर्ड पार्ट x Ma'am, plus y minus xy. This is a trinomial. trinomial, बच्चा. Three terms are there ना, x, y and xy. Ma'am, I am also saying trinomial. Yes. मैम मैंने तो trinomial लिखा है. ओके ओके ओके. फोर्थ किसकी टर्न है? विराट, विराज, विराज. Ma'am, it's monomial. Monomial. Only one term is there, 100. So this is monomial. Fifth, Virat. Trinomial. Trinomial, 3 terms again. Sixth, Ekam. Ekam. Ma'am, trinomial. Binomial. Trinomial. Try nahi, bi. Two terms are there na, 5 and 3t minus ki 3t. Two terms are there. Next, Viraj. Viraj. Ma'am, it's binomial. Binomial, 2 terms are there again. Virat. Monomial. 7mn is monomial, 1 term product में है. 9th, Ekam. Z square minus 3z plus 8. Ekam. Trinomial. Yes, trinomial, 3 terms are there. Viraj. Ma'am, binomial. Yes, a square plus b square is binomial. Virat. Binomial. Z square plus z, binomial, 2 terms are there. Ekam. Ekam. Ma'am, trinomial. Yes, 3 terms are there, so trinomial. Okay, good everyone. Moving to next one. State whether a given pair of term is of like or unlike terms. मैंने बताया था like terms कौन सी होती है जिनके factors, algebraic factors सेम होते हैं. मतलब 5x and 3x. These are like terms क्योंकि इसमें वेरिएबल भी सेम है एंड वेरिएबल की पावर भी सेम है. 2x and 7y, these are unlike terms because variables are different. ठीक है, चलिए अब बताएंगे. किसकी टर्न थी? विराट से खत्म हुआ. विराट एकम से खत्म हुआ तो विराज की ही आएगी. हाँ जी विराज. लाइक दोनों टर्म्स कांस्टेंट है. वैल्यू अलग अलग हो सकती है लेकिन है तो कांस्टेंट. सो दीज आर लाइक टर्म्स. विराट. मैम लाइक. लाइक क्योंकि दोनों में x x है, वेरिएबल इज सेम और वेरिएबल की पावर्स भी सेम है. एकम थर्ड पार्ट. एकम. The answer is unlike. बिकॉज एक टर्म में x वेरिएबल है, दूसरे में y. सो दीज टर्म्स आर नॉट लाइक, अनलाइक टर्म्स. ओके, फोर्थ विराज. लाइक इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. एक्स वाई या वाई एक्स एक ही बात है. नेक्स्ट विराट. मैम अनलाइक. अनलाइक इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों में m और p तो है लेकिन इसके फैक्टर्स देखोगे m स्क्वायर p 4mmp और इसके फैक्टर्स देखोगे 4mpp. फैक्टर्स आर डिफरेंट. अलजेब्रिक फैक्टर्स जिसके सेम होते हैं वो लाइक टर्म्स होती हैं. चलिए नेक्स्ट वन. एकम 6 पार्ट. एकम. यस एकम बताइए 6th पार्ट में टर्म्स आर लाइक और अनलाइक. एकम. एकम. विराट आप बताओ. मैम विराज की टर्न. विराज आप बताओ. अनलाइक क्योंकि यहाँ पे XZ है, यहाँ पे XZ है लेकिन पावर्स आर डिफरेंट. सो दीज आर
unlike terms. Let us move to the next question. Identify like terms. इसमें बहुत सारी terms given है, तो like terms कौन कौन सी है उनको लिखना है. So पहले term लेते हैं minus x y square. अब देखो x और y का स्क्वायर, ये टर्म है x y स्क्वायर, और है कोई x y स्क्वायर? नो. सो 2xy स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स है. अगला पेयर ढूंढते हैं लाइक टर्म्स का. अगली यहाँ पे टर्म आई -4y(x स्क्वायर, y(x स्क्वायर). अब y और x स्क्वायर, दिस इज y(x स्क्वायर). तो x स्क्वायर y सेम नहीं बात हो गई ना विराट? मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे हो सकता है ना. x स्क्वायर y या y x स्क्वायर वन एंड द सेम थिंग. ठीक है. सो एक और पेयर मिल गया हमें जो कि लाइक टर्म्स है. आगे ढूंढेंगे और लाइक टर्म्स. अगली टर्म की बारी आई. हाँ जी मैम. मैम सेकंड पार्ट मैम -4y(x स्क्वायर) का मैम 20x स्क्वायर y नहीं हो सकता? -4y(x स्क्वायर) का 20x स्क्वायर y लिखा है ना बेटा? ये अच्छा ओके मैम, मेरे को अभी दिखाया. ओके. 8x स्क्वायर x स्क्वायर वाली -11x स्क्वायर, -6x स्क्वायर, और भी है -6x स्क्वायर. ओके, दीज आर लाइक टर्म्स. ओके, ये भी हो गई. अब अगली टर्म आई, किसकी बारी? 7y की. 7y, तो y वाली कोई और टर्म है? ये रहा अकेला y है. उसके बाद जैसे हम क्वांटिन्यूटी में चल रहे हैं, अंडरलाइन करते जा रहे हैं कि ये टर्म हो गई. अब -100x, 3x is there. okay, these are like terms. अब क्या बचा? -11yx, 2xy, xy या yx वन एंड द सेम थिंग. सो अब हमारी सारी टर्म्स कवर हो गई. हम अंडरलाइन करते गए ताकि हमें दोबारा चेक ना करना पड़े कि कोई टर्म बीच में छूट तो नहीं गई. ठीक है. नेक्स्ट आप पेयर्स लिख लो पहले, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूंगी. चलो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करती हूँ, पूरे आ जाए तो. बी पार्ट के पहली टर्म है 10pq. ढूंढो. 78qp. मैम -7qp and 78qp. -7qp is also there. yes विराट, गुड. विराट आपने ये मिस कर दिया. -7qp. ओके, और कोई qp वाली है? नो. अब चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं. 7p, p वाली ढूंढो. 2405p मैम, 2405p. p p p p p p p p p 2405p. यस. ओके, नेक्स्ट आ गई हमारे पास q की टर्म 8q. मैम -100q. -100q is there. okay, anything else? no. मैम और कोई नहीं है. चलिए इसके बाद -p² q स्क्वायर. ये टर्म 12q स्क्वायर p स्क्वायर. यस, 12q स्क्वायर p स्क्वायर. और कोई q स्क्वायर p स्क्वायर की? नो. नेक्स्ट पेयर ये हो गया, ये हो गया. -23. मैम 41. मैम पॉजिटिव. यस, 41 इज देयर. अब टर्न आई -5p स्क्वायर की. 701p स्क्वायर. मैम 701p स्क्वायर. यस, 701p स्क्वायर हो गया हमारा. अब हमारे पास बचा 13p स्क्वायर q. मैम qp स्क्वायर. यस, qp स्क्वायर. वेरिएबल्स की जो पावर्स है वो सेम होनी चाहिए. p की वैल्यू 2 है तो इसमें भी p की वैल्यू 2 है. q की 1 है तो q की 1 है. इस तरह से हमने लाइक टर्म्स को एक एक ब्रैकेट में लिख दिया, पेयर बना दिया, कॉमा डाल के भी लिख सकते थे, जैसे आपको कन्वीनियंट. ठीक है. सो ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1 जो हमने फिनिश कर लिया है. 12.4 तक इसकी एक्सरसाइजेज है. 12.2, 3 and 4 इज लेफ्ट, जो हम कल कंटिन्यू करेंगे 12.2 से. 12.2 स्टार्ट करेंगे. तो आज की क्लास को हम यही करते हैं फिनिश. बाय बाय बच्चों, टेक केयर. बाय मैम.
बाय बच्चों, टेक केयर.